زبور 51, زبور 51 میرے ساتھ کھولیے گا اور اس کی 70ویں آیت. ایک ہی آیت میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنے کی جسارت کروں گا جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے. پلیز سبھی غور فرمائیے گا. یہ آیت ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اس آیت کو اپنی دعا بنا لیجئے. ہر روز اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے. یہ آیت آپ کے لیے راہیں تیار کر سکتی ہے. تو آئے میرے ساتھ کھولیں اور اس آیت کو پڑھیں گے. 51 باب اور اس کی 70ویں آیت. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے کا. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کے کثرت کے ساتھ برکت ہو. جس سب کہیں آمین. عنوان ٹوٹا ہوا دل یا سچی توبہ. ٹوٹا ہوا دل یا سچی توبہ. اور یہ زبور 51 داؤد کی توبہ کی دعا ہے. اور اگر ہم اس زبور کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ زبور رسمی عبادت کو پیش نہیں کرتا بلکہ یہ زبور باطنی حقیقت کو بیان کرتا ہے. اور اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں اس کی ہسٹری کے اندر جائیں, اس کی تاریخ کے اندر جائیں کہ یہ کب لکھا گیا, کیوں لکھا گیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب داؤد نبی, داؤد بادشاہ, داؤد نبی اور داؤد بادشاہ, یہ بائبل مقدس میں پہلا شخص ہے جس کو 2 بار مسح کیا گیا. ایک بار نبی ہونے کے لیے, ایک بار بادشاہ ہونے کے لیے. جب یہ بادشاہ ہے, جب یہ حکومت کر رہا ہے, جب یہ سلطنت کر رہا ہے, جب یہ جنگیں لڑ رہا ہے اور جب یہ اسرائیل کا انصاف بھی کر رہا ہے, تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ہتی اوریا کی بیوی بت سبا کو دیکھا. جب وہ نہا رہی تھی, جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر گناہ پیدا ہوا, اس کے اندر زناکاری نے جوش مارا. اس نے اس عورت سے نسبت کرنا چاہی اور جب اس نے اس عورت سے زنا کر لیا تو اس کے بعد پھر اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اس کے شوہر کو, جس کا نام ہتی اوریا ہے, اس کو جنگ میں مروا دیا. اور جب یہ 2 بڑے کام اس سے سرزد ہو گئے, جب زناکاری اس سے ہو گئی, جب قتل اس نے کروا دیا, تو 2 بڑے کام اس نے کیے جس کی وجہ سے وہ گناہگار ٹھہرا. گناہ اس کے اوپر مسلط ہوا. یعنی اس نے 10 حکموں میں سے 2 حکموں کو توڑ دیا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا اور تو خون نہ کرنا. یہاں 2 حکم داؤد بادشاہ توڑ رہا ہے اور پھر خدا مداخلت کرتا ہے. پھر خدا اپنے نبی کے ذریعہ سے اس سے بات کرتا ہے اور خدا کا نبی ناتن نبی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کے گناہ کو اس کے سامنے لاتا ہے اور وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور جب
जब गुनाह का इकरार करता है, जब गुनाह संसद हो जाता है, जब नबी उसे मलामत करता है, तो ये ज़बूर लिखा जाता है। 51 ज़बूर, 51 ज़बूर तब लिखा जाता है। और जब नातन नबी उसे आकर मलामत करता है, ये नबी है, ये वक्त का नबी है, और दाऊद नबी वक्त का बादशाह भी है। और जब वो वक्त का बादशाह है तो देखिएगा कि वक्त के बादशाह को वक्त का नबी मलामत कर रहा है, कोई और आकर उसे मलामत नहीं कर रहा। दाऊद नबी को कोई और आकर उसकी रियाया में से, उसके मशीनों में से, उसके वजीरों में से, उसके फौजियों में से आकर उसको मलामत नहीं कर रहा। मलामत तो वो करेगा जो जिस पर खुदा का मसा है। मलामत तो वो करेगा जिसमें खुदा की आवाज है। मलामत तो वो करेगा जो खुदा की तरफ से आया है, भेजा गया है, और वो खुदा की तरफ से नाता नबी किंग डेविड के पास भेजा गया। दाऊद नबी के पास खुदा की तरफ से भेजा गया और आकर उसको मलामत करता है। अब जब वो नबी मलामत कर रहा है तो यहां पर दाऊद ने ये नहीं किया कि ये नबी गलत है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि ये मलामत करने वाला नातन नबी ठीक नहीं है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि इसको बदल दो, कोई और नबी आए मेरी तरफ। दाऊद ने उसे एक्सेप्ट किया। दाऊद नबी ने उस नातन नबी की आवाज को, मलामत को रसीद किया, एक्सेप्ट किया, रद्द नहीं कर दिया, उसे पेश नहीं किया, जवाब पेश नहीं किया, बल्कि अपने गुनाह को मान लिया। हाँ, मैं गुनाहगार हूं, तस्लीम किया, मान लिया। और अगर आज पास्टर आपको मलामत करता है तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है। अगर आप भी बुरा मान जाए कि पास्टर साहब ने हमारे ये बात कही है, पास्टर ठीक नहीं है, या पास्टर बदल दो, तो इसमें क्या चीज आ रही है? अना। इसमें क्या है कि बंदा खुद गलत है लेकिन अपनी गलती को मान ही नहीं रहा। बंदा खुद गलत है लेकिन अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, जवाब पेश कर रहा है। मैं ओके हूं, मैं दुरुस्त हूं, और खुदा की आवाज को रिजेक्ट किया जा रहा है, खुदा के भेजे हुए को रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आज आपके पास पास्टर है तो मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से आपके पास है। पास्टर आपके साथ सिर्फ इबादत ही नहीं कर रहा, पास्टर आपको खुदा की आवाज सुना रहा है। जो खुदा की तरफ से आवाज है वो आप तक पहुंचा रहा है, जो खुदा का कलाम है वो आप तक पहुंचा रहा है। यही तो नातन नबी कर रहा है। जो कुछ खुदा की तरफ से वही दाऊद तक ला रहा है। अगर मैं ऐसे पास्टर मरते खुदा की आवाज को आप तक पहुंचा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? मैं अगर आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, तेरी रात ठीक नहीं, तू दुरुस्त नहीं, ये काम तू गलत कर रहा है, तो अजीज से आपको इस पर इत्तेफाक करना चाहिए, क्योंकि कोई शख्स भी रास्ते नहीं है, कोई शख्स भी ऐसा नहीं कि
जिसने गुनाह ना किया हो। और अगर हम अपने गुनाह को छुपाते हैं, अपने गुनाह पर अकड़ते हैं, अपने गुनाह पर जवाब पेश करते हैं, अपने गुनाह को मानते ही नहीं, तो फिर हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और इसमें किसकी तबाही है, किसकी बर्बादी है? पास्टर की नहीं, बल्कि खुद की। जो गुनाह कर रही है जान, उसकी बर्बादी और हलाकत है। जो खुद जान गलत कर रही है, उसके लिए ही खुदा की आवाज है। तो इसलिए जब खुदा का खादम मर्दे खुदा नातम नबी आकर दाऊद से कह रहा है, तो देखिए वक्त का नबी है, वक्त का बादशाह भी है, जो चाहता है कर देता है। उसके एक हुक्म पर हित्ती ओरिया को कत्ल करवा दिया गया। उसके एक हुक्म पर उस बादशाह के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर उसने अपने गुनाह को मान लिया। यहां दाऊद नबी ने अपनी उस खता को मान लिया। और फिर जो इस आयत में जो पहली बात है वो सीखिएगा। इसमें पहली बात जो दर्ज है वो है खुदा की कुर्बानी। खुदा कैसी कुर्बानी चाहता है, खुदा किस तरह की कुर्बानी मांगता है, और खुदा को किस तरह की कुर्बानी पसंद है, ये बात जानने के लिए खस्ता दिल होना पड़ेगा। यहां लिखा है शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। अब शिकस्ता रूह, अब ये शिकस्ता रूह जो है, कोई इंसान जब अपने आप पर मुलामत करता है, अपने आप में झांकता है और टूट जाता है, जब वो अपने आप में गुनाह के जोर से टूट जाता है, गुनाह को मान लेता है, पछता हो जाता है, खुदा की तरफ रुख कर लेता है, और वो शख्स फिर क्या है? शिकस्ता रूह रखता है। और यही खस्ता और शिकस्ता दिल, यही शिकस्ता और खस्ता रूह खुदा को पसंद है, और ये खुदा की कुर्बानी है। अगर कोई शख्स शिकस्ता दिल के पास साथ खुदा के पास नहीं आता, खस्ता दिल के पास खुदा के पास नहीं आता, तो खुदा ऐसे शख्स को कबूल भी नहीं करता। खुदा फरमा रहा है कि मुझे किस तरह की कुर्बानी चाहिए? शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। दाऊद बड़े ही फासियाना अंदाज में लिख रहा है कि खुदा को कैसी कुर्बानी पसंद है। खुदा को खस्ता रूह पसंद है, शिकस्ता रूह पसंद है, खस्ता शिकस्ता दिल पसंद है। खुदा जो नहायत कुदरत वाला खुदा है, शिकस्ता रूह को पसंद करता है। और शिकस्ता और खस्ता रूह दिल क्या है? ऐसा दिल जो खुदा को की तरफ माइल हो। खस्ता दिल क्या है? पिसा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल और कुचला हुआ दिल। ऐसा दिल जो कुचला हुआ दिल है वो खस्ता दिल है। अब खस्ता आप समझ सकते हैं, किसी भी पेपर को आप हाथ लगाएं तो वो जहां पर हाथ लगाएंगे वहां से ही क्या होगा? वो वहां से टूट जाएगा। ऐसा दिल खस्ता दिल है जो हाथ लगाने से भी टूट रहा हो, जो बिखर हाथ लगाने से भी बिखर रहा हो। ये है खस्ता, ये है कुचला हुआ दिल। और ऐसे दिल को खुदा पसंद फरमाता है, और यही खुदा की पसंदीदा कुर्बानी है। दाऊद कहता है कि अगर तू जानवरों की कुर्बानी
कुर्बानियां पसंद करता तो मैं तुझे देता, लेकिन तेरी कुर्बानी जो है वो खस्ता शिकस्ता दिल है। इसलिए तू जानवरों की कुर्बानियों से ज्यादा पसंद करता है शिकस्ता दिल की कुर्बानी को। और खुदा बछड़ों को, बकरों को, मेंढों की कुर्बानी को नहीं, बल्कि खुदा इंसाफ की कुर्बानी को पसंद करता है। खुदा रास्तबाजी की कुर्बानी को पसंद करता है। खुदा हमत की परस्तश की कुर्बानी को पसंद करता है। और खुदा ऐसी कुर्बानी को पसंद करता है जो सदाकत से भरी हुई हो। इस तरह की कुर्बानी खुदा के हुजूर गजराने तो खुदा इसे पसंद करेगा। अगर हम बछड़े ले आए, बकरे ले आए और कीमती तोहफे लेकर खुदा के हुजूर आए और फिर आकर बड़ा रोब बयान करें कि मैं तो बैल लेके आया, मैं तो बछड़ा लेकर आया, मैं तो 50,000 का बकरा लेकर आया, कोई आकर कहे कि मैंने तो 2 लाख का बड़ा बैल लेकर आया हूं, तो वो अपने दिल में अकड़ा हुआ हो, कमंडी हो, अपने दिल पर, अपनी दौलत पर गरूर कर रहा हो, तो क्या खुदा ऐसी कुर्बानी को पसंद करेगा? खुदा ऐसी कुर्बानी को हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। खुदा सदाकत की कुर्बानी को पसंद करता है, खुदा अदल की कुर्बानी को पसंद करता है। अगर आप किसी के साथ अदल करते हैं, अगर आप किसी के साथ इंसाफ करते हैं, अगर आप फरोख्ती के साथ जिंदगी बसर करते हैं, तो इसको खुदा पसंद करता है। और खुदा की यही पसंदीदा कुर्बानी है रास्तबाजी और अदल, इंसाफ। यही खुदा की सबसे ज्यादा पसंदीदा कुर्बानी है। अदल को, इंसाफ को, रास्तबाजी को अपने दिलों के अंदर कसरत से बसने दे। और याद रखे, फिर यही कुर्बानी, यही रास्ते, यही सदाकत, यही अदल आपके दिल को नरम करेगी और यही आपके दिल को फरमाबरदार बनाएगी। यही चीजें, सदाकत और रास्तबाजी और अदल, इंसाफ, यही आपको खुदा के मनपसंद दिल के मुताबिक बना देंगे कि खुदा शिकस्ता व खस्ता दिल को, कुर्बानी को पसंद करता है। तो ये चीजें हैं जो खुदा को पसंद है। खुदा ज़ाहिरी इबादत को नहीं, बल्कि बातिनी हकीकत को देखता है। खुदा ये नहीं देख रहा कि हम कैसी इबादत कर रहे हैं, खुदा ये देख रहा है कि हमारी दिल की हालत कैसी, हम किस दिल के साथ इबादत कर रहे हैं। अगर हम बड़े जोश में हो लेकिन हमारा दिल फरोतन ना हो, हमारा दिल खस्ता ना हो, हमारा दिल रास्ते से भरा हुआ ना हो, हमारा दिल फरमाबरदार ना हो, तो फिर हमारा वो रूहानी जोश, जिस जोश से हम बजा रहे हैं, जिस जोश से हम गा रहे हैं, जिस जोश से हम हमद कर रहे हैं, उसको क्या खुदा पसंद करेगा? नो, फिर खुदा उसको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि खुदा प्रायोरिटी किसको दे रहा है? खुदा प्रायोरिटी इबादत से बढ़कर उस चीज को दे रहा है जो हकीकत है। अगर आप हकीकी इबादत करते हैं, हकीकी तौर पर दिल से खुदा की तरफ मुतवज्जो है, तो खुदा आपको, आपके दिल को और आपकी इबादत को पसंद फरमा रहा है। अगली बात इसमें जो है वो है खस्ता दिल। अब खस्ता दिल क्या है? खस्ता दिल टूटा हुआ दिल है, कुचला हुआ दिल है, और जिसको हाथ लगाने से जो बिखर जाए, हाथ लगाने से टूट जाए दिल, ऐसा दिल खस्ता दिल है और नरम दिल है, ये फरोतन दिल है और ये दिल फरमाबरदार है, खुदा दोस्त दिल है। ये ऐसा दिल खुदा के सामने झुका हुआ दिल है, ऐसा दिल अपने गुनाह का एहसास रखता है और ऐसा
دل خود کو درست نہیں کہتا، یعنی خستہ دل والا، شکستہ دل والا خود کو ہمیشہ درست نہیں بناتا، بلکہ اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میں خطا پر تو نہیں، میں گناہ تو نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو وہ اس کو مان بھی لیتا ہے کہ میری خطا ہے، میرا گناہ ہے۔ اور پھر یہ خستہ اور شکستہ دل ایسا دل ہے جو خدا کو پسند ہے، کیونکہ یہاں سے ہی سچی توبہ نکلتی ہے، اور سچی توبہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرا کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے مصفا پر رکھیں اور آنسو بہائیں، اور آپ کا دل بھی رو رہا ہو، آپ اندر سے رو رہے ہو، اندر سے سسک رہے ہو، دل رو رہا ہو، دل سسک رہا ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، دل خستہ ہو، گناہ کے سبب سے گناہ میں کچل دیا ہوا ہو، اور خدا چاہ رہا ہے کہ وہ انسان پچھتاتا ہوا، روتا ہوا، تڑپتا ہوا میری طرف متوجہ ہو اور توبہ کرے۔ اور توبہ ایسی نہیں کہ ہر روز صبح بھی توبہ، دوپہر کو بھی توبہ، شام کو بھی توبہ، ہر وقت بات کرنے کے بعد پھر توبہ۔ اور کئی بار لوگ توبہ تو کرتے ہیں مگر ایک توبہ نہیں کرتے، ان کی توبہ باقی رہتی ہے، وہ توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ کرتے رہیں گے، لیکن ایک سچی خالص توبہ، حقیقی توبہ نہیں کریں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ایک توبہ انسان کرے، کیونکہ خدا ایک ہے اور اس کا کلمہ ایک ہے، اس کا بیٹا، اس کا کلمہ ایک ہے، اور اس کا بپتسمہ ایک ہے۔ اب بار بار توبہ کر کے بار بار بپتسمے نہیں ہے، بپتسمہ جب ایک ہے تو توبہ بھی ایک ہے، ایک ہی توبہ ضروری ہے، ایک ہی توبہ تبدیلی کے لیے کافی ہے، بار بار توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو روٹین ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ گناہ کیا توبہ کی، بدی کی توبہ کی، خدا کی توبہ کی، یہ تو عادت ہے۔ جس طرح گناہ کرنے کی عادت ہے ویسے ہی توبہ کرنے کی بھی عادت ہے۔ اور یہاں پر خدا توبہ مانگ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے، یو ٹرن لے، واپس آئے، سچی توبہ کرے۔ اور ایک سچی توبہ ہی تو ہو نہیں رہی، اب دل کچھ کہہ رہا ہے اور زبان کچھ کہہ رہی ہے، اب دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں اور کس طرح کی توبہ کر رہے ہیں، کیا دو عبادتیں نہیں ہو رہی؟ ایک منہ سے عبادت ہو رہی ہے، ایک دل سے عبادت ہو رہی ہے، اور جو منہ سے عبادت ہو رہی ہے ظاہری عبادت ہو رہی ہے، اور دل کی عبادت جو ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے۔ وہ جہاں پر دل ہے، جس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے اسی کی عبادت ہے، وہی اس کا محبوب ہی اس کا خدا ہے، اس پر ہی اس کا دھیان ہے۔ اگر دل دولت پر لگا ہے تو دولت کی عبادت ہو رہی ہے، دولت کا خیال ہے، اور اگر دل کسی اور اچھی چیز پر لگا ہوا ہے تو پھر دل میں تو وہی عبادت ہے، لیکن منہ میں کیا ہے؟ خدا کی عبادت، خدا کی پرستش ہونا یہ چاہیے۔ یہاں بھی اگر پرستش خدا کی ہے تو یہاں پر بھی خدا کی پرستش ہو، یہاں پر اگر خدا کے حضور توبہ کی صدا ہے تو یہاں پر بھی توبہ کی صدا ہو، یہاں بھی اور یہاں بھی ایک ہی بات ہو۔ اور یہ فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ زبان کا اور دل کا یہ فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ میں اگر اندازہ کروں
तो ये 9 से 10 इंच का फासला है। 9 से 10 इंच, चलो 1 फुट का, 1 फुट ही सही। सारी जिंदगी इंसान से ये 1 फुट का फासला तय नहीं होता। पूरी जिंदगी इंसान सफर करता है, जहाजों पर और जगह पर भी बड़े बड़े लंबे सफर, लेकिन ये जो तौबा का दिल का और जबान का, दिल से जबान तक का सफर है, ये इंसान तय नहीं कर पाता, ये खत्म ही नहीं होता। जिस रोज जबान और दिल एक हो जाएंगे, हकीकी और सच्ची तौबा हो जाएगी। हकीकी और सच्ची तौबा खुदा चाहता है। इसलिए तौबा इस तरह की करें कि खुदा भी इस तौबा को कबूल करे। अपने आप को खुश मत करें कि मैंने तौबा की है, या किसी दूसरे को खुश ना करें तौबा करके। गलती खुदा, इंसान गुनाह करता है, लेकिन किसका? सवाल है किसका? अब दाऊद ने अगर गुनाह किया तो गुनाह जब उसने जरा किया तो बित्सबा के साथ, जब उसने कत्ल किया तो हित्ती ओरिया का कत्ल किया, तो लेकिन वो क्या क्या रहा है कि वो क्या ये कह रहा है कि खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, गुनाह खुदा का किया। देखिए, हालांकि इंसानों के साथ उसने ये सब कुछ किया, गुनाह इंसानों के साथ कर रहा है, इंसानों में रहकर कर रहा है, लेकिन मान किसके आगे रहा है? खुदा के आगे। हर नाफरमानी गुनाह की जड़ है, और जो कोई भी इंसान गुनाह करता है वो खुदा का ही गुनाह करता है, और खुदा से ही माफी मांगने की जरूरत है। सबसे पहले और जरूरी चीज ये है कि दाऊद जो खुदा के सामने आता है तो वो किस तरह से आता है? वो खस्ता दिल के साथ खुदा के सामने आता है। सबूरी 51 ऐसे नहीं लिखा गया, ये खस्ता शिकस्ता रूह को, दिल को बयान कर रहा है। और अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर आप देखेंगे तो ये बड़ी उम्दा और जबरदस्त मिसाल दाऊद की आपको मिलेगी कि जो खस्ता दिल के साथ खुदा की हजूरी में झुक गया है। अब जब खुदा की हजूरी में दाऊद झुक गया है तो खस्ता दिल के साथ आया है, रोता हुआ खुदा के हजूर आया है, पछताता हुआ खुदा के हजूर आया है, टूटा हुआ खुदा के हजूर आया है, और जानकर आया है कि मैंने खुदा का गुनाह किया है, मैंने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की है, और जो उसने 10 हुक्म पढ़े थे वो जान गया था कि उनमें से 2 मैंने तोड़ दिए हैं, और वो इसलिए उन 2 हुक्मों के टूट जाने पर मातम करता हुआ, चिल्लाता हुआ खुदा के हजूर में झुक जाता है, घुटनों में बोला जाता है, आंसू भी निकल रहे हैं, दिल रो रहा है, दिल जो है वो कुचला हुआ है गम की वजह से कि मुझसे गुनाह हो गया है, पछतावे की वजह से उसका दिल खस्ता हो गया है, और अब उसको पता है कि सिवाय खुदा के मुझे कोई बहाल नहीं कर सकता, इसलिए वो खुदा की तरफ राग़िब होता है, खुदा की तरफ मुतवज्जह होता है, और फिर जब वो खुदा की तरफ राग़िब और मुतवज्जह होता है तो फिर वो कहता है कि ऐ खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे तोड़ डाल, और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है, और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में राज ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब
पड़ी और मैं गुनाहगार गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। और देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। जुल्फे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी रूह पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर और मुस्तकिद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा और तू मेरी जबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावंद, मेरे होठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सदाकत निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सो तेरी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता दिल शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को पसंद करता है, हकीर ना जाने। तो इस तरह दाऊद खुदा के सामने झुका हुआ है। दाऊद मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने टूटा हुआ है, मुकम्मल तौर पर अपने गुनाह पर नदामत कर रहा है, अपने गुनाह पर पछतावा कर रहा है, अपने गुनाह को मान रहा है और खुदा की रहमत और शफकत को याद दिला रहा है। खुदा की शफकत जो आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद है। खुदा, अब मुझे अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। गुनाह मैंने किया है तो अब तू अपनी शफकत फरमा, अपनी रहमत की कसरत। खुदा की रहमत की कसरत लाज बेतहा और सीमा नहीं है। खुदा रहमत का खुदा है और खुदा माफ करने वाला खुदा है। कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो खुदा उसे माफ कर देता है। जब दाऊद दहाई दे रहा है, जब खुदा दाऊद इल्तिजा कर रहा है, जब दुआ कर रहा है तौबा के लिए, तो खुदा उस पर रहम फरमा रहा है, शफकत फरमा रहा है। खुदा उसे माफ कर रहा है, खुदा उसे धो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मुझे धो। तो खुदा उसे धो रहा है, वो इल्तिजा कर रहा है। उसको पता है कि इस गुनाह के सबब से मैं खुदा की हजूरी से दूर न चला जाऊं। उसको पता है कि इस गुनाह के सबब से खुदा का पाक रूह मुझसे जुदा ना हो जाए, और उसको पता है कि खुदा अगर मेरा मुंह बंद कर दे तो मैं कभी भी सताइश नहीं कर सकता। खुदा के हसूर में वो इस तरह से इल्तिजा कर रहा है कि खुदा तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। पाक दिल जब तू मेरे अंदर पैदा करेगा तो फिर मैं गुनाह ही ना करूंगा। मेरे अंदर जो दिल होगा वो शिकस्ता रूह होगा। मेरे अंदर जो दिल होगा वो खस्ता होगा, और वो ऐसा दिल होगा जो पाक दिल होगा, जिसमें बदी का ख्याल ना होगा, जिसमें बदी की सोच ना होगी, जिसमें बदी की ख्वाहिश ना होगी। इसलिए दाऊद इस तरह से खुदा के हुजूर में दुआ करता है कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, ना बदी का ख्याल आए ना मैं बदी करूं। और फिर जब पाक रूह किसी से जुदा हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान है।
तो फिर वो इसके लिए भी इंतजार कर रहा है कि गुनाह नाफरमानी तो मुझसे हो गई, लेकिन ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मुझसे अब अपना पाकरू जुदा ना करना, तेरा पाकरू मुझ में रहे, बल्कि तू असरे नौ अपने रूह को जो मुस्तकीम रूह है मुझ में डाल, ऐसा रूह जो मुझे मलामत करे, ऐसा पाक रूह जो मुझे गुनाह जब मैं करूं तो झंझोड़े, जब गुनाह का ख्याल करूं तो मुझे झंझोड़ दे, मेरी रहनुमाई करे, ऐसा रूह मेरे अंदर डाल दे। और तेरा वो पाक रूह ही है, और इस तरह से वो इंतजार कर रहा है। और इसके साथ वो ये भी कह रहा है कि तू है खुदा शिकस्ता और खस्ता दिल को, जो अगली बात है, हकीर ना जाने का, हकीर ना जाने का मतलब कि जो टूटे दिल के साथ, कुचले हुए दिल के साथ तेरी हजूरी में आएगा, पछताते हुए तेरी हजूरी में आएगा, सच्ची तौबा के लिए तेरे पास आएगा, तू उसे रद्द नहीं करेगा, तू उससे हकीर नहीं जानेगा, तू उसकी कदर करेगा। दुनिया कहती है गुनाहगार से कि गुनाहगार, दुनिया गुनाहगार को रद्द करती है, लेकिन खुदा गुनाहगार जब तौबा करता है खुदा उसे कबूल करता है। तो इसलिए कि जो कोई खस्ता हालत में टूटे हुए दिल के साथ खुदा तेरी हजूरी में आएगा, तू उसकी हकारत ना करेगा, तू उसे हकीर ना जानेगा, और ना तू उससे मुंह मोड़ेगा, बल्कि तू उसे रहमत की फरावानी से याद करके माफ करेगा, अपनी शफकत की कसरत से रहम करेगा, और उसकी सब खताओं को धो डालेगा, बर्फ की माने शिफाफ कर देगा, और अपनी हजूरी में उसे कायम रखेगा, और अपना पाक रूह असरे नौ मुस्तकीम रूह उसमें ढालेगा, पाक दिल उसके अंदर पैदा करेगा जो सच्ची तौबा करेगा। लेकिन अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता तो फिर वो ऐसे गिफ्ट से महरूम रहता है, उसके अंदर पाक दिल नहीं होता। जो सच्ची तौबा नहीं करता उसके अंदर असरे नौ मुस्तकीम रूह नहीं होता, और जो सच्ची तौबा नहीं करता उसके अंदर सच्ची वर्शिप भी नहीं होती। वो यही है, उस तरह कर रहा है कि कोई आदमी मुंह पर तो बुरा साफ है लेकिन अंदर उसके गुनाह है। काश तुम इतने अच्छे ना होते, काश तुम इतने सच्चे ना होते, काश जो कुछ तुम कहते हो वो तुम्हारे दिल में भी होता। तो ये बात है, जो दिल में है वही मुंह पर हो, जो मुंह में है वही दिल पर हो। यही हकीकत है, यही सच है, और यही सच्ची तौबा है। जब आप ज़बान से तौबा कर रहे हैं तो दिल से भी तौबा होनी चाहिए, यही खुदा को कबूल है। और अब जब दाऊद माफी मांग रहा है तो वो सिर्फ माफी ही नहीं मांग रहा, बल्कि वो तब्दीली भी मांग रहा है कि मुझे तो अब तब्दील भी कर, बदल भी दे, सिर्फ मुझे माफी ना कर, तब्दील भी कर दे। आगे की सोच रहा है, वो यहाँ तक मलूद नहीं रहता, लेकिन जो सच्ची तौबा करता है वो भी वहां तक मलूद नहीं रहता, वो भी खुदा की हजूरी में आगे बढ़ना चाहता है। जिसके पास सच्ची तौबा है वही खुदा की बरकत हासिल कर सकता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत के साथ बरकत दे, सब कहें आमीन। हम दुआ करेंगे, वर्शिप के लिए भाई आप आ जाएं। सभी शुक्रगुजारी से भरे हुए खुदा की हजूरी में लौटे, टूटे दिल के साथ, खस्ता दिल के साथ। अगर इस कलाम में आपने दिल को